तो ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, this is the general structure for all of your essays. So remember, now you have an introduction, you have two body paragraphs, and then you have a conclusion. Now there is a general rule which we apply to all the paragraphs. I'll try to explain all of the ideas, and there could be some minor differences. I mean, there could be some subtle changes and shifts in different question types, but the general sketch is the same as the one that you can see on your screen. Now, in introductions, we usually have this formula called BAM strategy. So now let's see what this is all about. 1, 2, 3. So there are 3 sentences, BAM, background, arguments, paraphrased. Background, arguments, and main points. Now, background is a sentence which is not essential. I mean, you can just do without it. So you could call it neutral sentence. And when I say neutral sentence, it means that it does not have any opinion in it. So, for example, if there is a question, and for example, whatever the question is, that question is actually an argument, of course, in the form of an argument. Now, how to think of a background sentence? The formula is to think of why did this argument start? For example, let's say if there is a question, some people argue that we need to reserve or we need to work for saving different endangered species of organisms, while others think that it is human beings who need to be prioritized and not other animals or any other species. So now there are two different, opinions. So background sentence will actually address the idea which is behind this argument, that why did people have to argue? So there must be some sort of an ongoing process, or maybe there must be some sort of an idea that there must be a group of people who believe that we should work to preserve different organisms. Otherwise, this argument would have been nowhere. So if there is something going on, then comes out an argument. Let's say if there is an argument, or maybe between two different groups of people, one of the group says that we should not get vaccinated because it has a lot of side effects, and then the other group says we must get vaccinated as soon as possible, otherwise the pandemic is going to be deadly, blah blah. So there are two different opinions. Now the background sentence will actually tell that what is the context, ये कहानी हुई क्यों, ये बहस शुरू क्यों हुई, because there is an ongoing pandemic and then there are different vaccines. So वो background बताएगा कि ये बहस क्यों चल रही है, किस मुद्दे पे चल रही है. So वो background है. अब remember, usually I don't recommend writing this sentence. अब ये sentence तब लिखेंगे जब दो प्रॉब्लम्स हो. नंबर 1, जो गिवन आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल ही उसका बैकग्राउंड बताया बगैर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है टू स्टार्ट एन एसे, और बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि जैसे विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट हम बात करेंगे. अगर हमने बैकग्राउंड नहीं बना तो फिर बना लें. सेकेंडली, अगर आर्ग्यूमेंट की जो वर्डिंग है बहुत शॉर्ट है, यानी जो गिवन स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन के अंदर, द गिवन डिस्क्रिप्शन, द गिवन आर्ग्यूमेंट्स, if that description is too short, then you might need some words in order to reach your 250. So that is why you might need to write a background sentence. Most of the times you can do without. Yani you can do without a background sentence. Okay, arguments paraphrased. This is of course an essential sentence. इसके बगैर बात नहीं बनेगी.
You will have to have this sentence in your answers. अब ये है कि arguments paraphrased का मतलब जो भी description है उसकी paraphrasing. Sometimes it is not even an argument. Sometimes it is just a description. So it is just a paraphrase. For example, in report writing, we used to paraphrase the given descriptions, and in essays, we might need to paraphrase the given arguments. We might need to paraphrase the given background sometimes, because if there is if there are no arguments in a sentence, sorry, in a question, then there is a background which is already there. So the first two sentences are actually they have the same purpose, and the purpose is to build a context, because these two sentences do not have what we want to tell the audience, because these two sentences do not have our input. We do not tell the audience or the reader what we believe or what we feel or what my points are. So the first two sentences are there to develop a context, एक idea develop करने के लिए कि किस मुद्दे पे बात हो रही है. So let's say if there are two different opinions and you are giving your opinion. So in order to give your opinion, you have to have those opinions कि जिनके ऊपर already बात चल रही है. So background चाहिए होता है. So the first two sentences, be it the background sentence or the one which is actually a paraphrase of the given arguments, in both cases, it is actually, the purpose is actually to have a background. In other words, a context. One thing. यहाँ तक तो काम easy है. जो main points हैं. Introduction के अंदर ये सारा introduction का paragraph चल रहा है. We haven't actually talked about any of the body paragraphs yet. It is only the introductory paragraph. So introduction paragraph का जो last sentence है, उसको हमेशा हम कहते हैं thesis statement. Remember, the thesis statement is actually the crux of whatever you're going to say, whatever you're going to, argue, whatever is your opinion. So you might not be able to talk about all the main points, but the main idea. Let's say if there are two arguments and you believe in one, you'll have to mention that you believe in it. And let's say if you agree to a question, or if you disagree to an idea, you will have to mention. Let's say that you think that these are the causes of any problem, you will have to mention. So the thesis statement actually tells what you think. And this is why this sentence is more important than the previous two sentences. So this sentence has your opinion and the main points. Now, sometimes it is quite impossible to enclose all the main ideas in a thesis statement. Then what people do is they convert this sentence, this thesis statement, into an outline sentence. That is fine too. Now, what is an outline sentence? Let me just. So you are going to write an outline sentence, if not a thesis statement. So, but remember, this is just a choice. You can't write both of them. Now, okay, outline sentence is actually a synopsis. Now, what is a synopsis? You submit sort of a plan of your research or your thesis in your universities. So now that particular plan, that this is the process, this is how I'm going to do this, I'm going to I'm going to conduct maybe a survey on the basis of these particular questions. I'm going to study from this perspective. I'm going to apply this particular theory. So that is a plan. That's not actually the opinion, but the plan.
So that is also possible. Now वो क्या होता है? This essay discusses both the given arguments and it will also provide XYZ. So वो हम सिर्फ बता रहे थे कि ऐसे करेगा क्या. ये भी हो सकता है कि this essay attempts to identify two of the major causes of XYZ problem, comma, and it also attempts to suggest the most probable solutions to this problem. So that is an outline. Outline statement ये होती है कि इस essay के अंदर हम ये करने जा रहे हैं. So one of these two, या तो आप outline sentence बनाएंगे या thesis statement. Now problem ये है कि sometimes students दोनों लिख रहे होते हैं because they have read both types of sample answers. तो उसमें वो देख रहे होते हैं, उसमें तो कहते हैं कि चलो इसका blend बनाते हैं. One, एक लिखें. And if you ask me what is my opinion, thesis statement, because thesis statement actually tells कि आप क्या believe करते हो. और outline sentence जो है it does not explicitly tell. तो जब thesis statement नहीं बनाएंगे, outline sentence बनाएंगे, तो फिर body paragraphs के अंदर बहुत ज़्यादा efforts करनी पड़ती हैं और कभी कभार extra body paragraph के लिए जाना पड़ता है. So अगर एक sentence यानी thesis statement के ऊपर अगर थोड़ा सा focus किया जाए, so the rest of the essay is usually easy. लेकिन अगर thesis statement ना बनाया जाए और एक easy sentence जो कि actually एक outline sentence होता है, तो फिर body paragraph मुश्किल होता है. ये मैं नहीं कह रहा कि thesis statement बनाना is rather preferable. ये मैं नहीं कह रहा. यानी thesis statement और जो outline sentence है दोनों actually same level के हैं, लेकिन आगे ऐसे का structure थोड़ा सा different हो जाएगा. यानी जिस तरह से argue करेंगे, conclusions निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने पहले opinion नहीं दिया तो opinion तक लेके जाने के लिए ज्यादा हाथ पांव मारने पड़ेंगे, ज्यादा logics और ज्यादा examples और possibly एक extra body paragraph लगेगा convince करने के लिए. अगर पहले ही opinion दे दिया हो तो ये बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. वहां पे हम एक्चुअली प्रूफ करने के बजाय ऐसा लग रहा होता है जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ओपिनियन पहले दे चुके हैं. तो बॉडी पैराग्राफ्स आर जस्ट एन एक्सटेंशन टू व्हाट वी बिलीव इन. दैट इज द डिफरेंस. सो अभी मैं आपको शो कर रहा हूं एग्जांपल कि किस तरह से आउटलाइन स्टेटमेंट होती है और किस तरह से थीसिस स्टेटमेंट. लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो हम बॉडी पैराग्राफ को भी देख के आते हैं. रिमेंबर, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, आर्ग्यूमेंट्स को पैराफ्रेज करना और थीसिस स्टेटमेंट का होना, दिस अप्लाइज टू एवरी क्वेश्चन टाइप. सो ये जो शुरू के जो रेड एंड ग्रीन में जो सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, इन सम सिचुएशंस ये दोनों एक ही जगह पे होते हैं, इसलिए वी डोंट नीड अ बैकग्राउंड सेंटेंस. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अपने स्टूडेंट्स के एसेज को देख के उनके बैकग्राउंड सेंटेंस को ड्रॉप करने का कह देता हूँ, बिकॉज वो कुछ अक्सर इररिलेवेंट सा होता है. तो बिकॉज इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट. एक्चुअली जो फर्स्ट सेंटेंस होता है किसी भी एसे का, वो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हुक सेंटेंस. यानी हुक सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है विच एक्चुअली हुक्स योर ऑडियंस, कि वो आपके ऑडियंस को रीड करने पे कन्विंस करता है, एक्साइट करता है उनको कि यार कुछ तो है इसमें, क्या क्या चीज बता रहा है ये राइटर. तो एग्जामिनर जो है ही इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड क्योंकि ही इज बीइंग पेड. सो जो फर्स्ट सेंटेंस है यानी जो हुक सेंटेंस जिसको बैकग्राउंड सेंटेंस की फॉर्म में हम यहाँ लिखते हैं, दैट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट. रिमेंबर, एग्जामिनर को ये चीज मालूम है कि ये लाजमी चीज नहीं. So don't worry if you can't make one. So you can just start off by paraphrasing the given argument in any question type. फिर उसके बाद तीसरी statement. अच्छा, now let's move on and let's see that what is a body paragraph and in what kind of sentences do we have in the body paragraphs. Okay, just one moment. Let me talk to my friend.
G. So I was saying a body paragraph always has some typical types of sentences. मैं इसको भी उसी तरह से लिखना चाहूँगा. Okay, we have a topic sentence, then we have logical explanation, then example or evidence, and then a concluding sentence. So every body paragraph begins with a topic sentence. So topic sentence जो है, it is essential. जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा that a thesis statement is actually the crux of your whole essay, क्योंकि उसके अंदर मेन बात होती है ओपिनियन या जो भी मुद्दा है आपका, और कभी कभार वो आउटलाइन सेंटेंस की फॉर्म में जो प्लान होता है, बिल्कुल उसी तरह आपका टॉपिक सेंटेंस है. So sometimes your topic sentence has the main point in it, sometimes it has the plan. जिस तरह से आखिरी सेंटेंस था आपका इंट्रोडक्शन का, या तो थीसिस स्टेटमेंट है जिसमें आप बता रहे हैं ओपिनियन और मेन पॉइंट्स, या फिर आप बता रहे हैं कि क्या होगा इस एसे में. यानी आप बता नहीं रहे हैं कि वो, फॉर एग्जांपल अगर किसी एसे के अंदर आपने कॉजेज और सॉल्यूशंस बताने हैं, तो अगर आपने वो कॉजेज क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं वो बता दिए तो वो थीसिस स्टेटमेंट हो गया. और बताए नहीं कि वो कॉजेज और सॉल्यूशंस क्या हैं, बल्कि ये बताया कि आप बताओगे कि कॉजेज और सॉल्यूशंस क्या हैं, तो वो आउटलाइन सेंटेंस हो गया. यानी फर्क ये है कि थीसिस स्टेटमेंट में वो चीज डायरेक्टली मेंशन होती है. लेट्स से एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, तो थीसिस स्टेटमेंट में आएगी कि एडवांटेज क्या है, और अगर आउटलाइन सेंटेंस आएगा तो हम बताएंगे कि ये ऐसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएगा, लेकिन वो कौन से हैं वो वहां पे होते नहीं. ये फर्क किस किस को क्लियर नहीं हो रहा, प्लीज आस्क. सर थोड़ा सा बता दें अगेन. आपकी कंफ्यूजन कहाँ पे है वो क्लियर करें. सर ये थीसिस स्टेटमेंट पे और ये जो आउटलाइन. देखें, अगर मैं एक Sentences ऐसे हैं. लिख रहा हूं, हाँ, जी. लेट्स से अगर मैं एक ऐसे लिख रहा हूं और उस ऐसे के अंदर मैंने लेट्स से कि मैंने बताना है कि भाई दो डिफरेंट ओपिनियंस में से किस ओपिनियन के ऊपर मैं बिलीव करता हूं. लेट्स से ये एक क्वेश्चन है कि सम पीपल बिलीव दिस, सम पीपल बिलीव दैट. तो थीसिस स्टेटमेंट में मैं उस ओपिनियन का बताऊंगा कि किस ओपिनियन पे मैं बिलीव कर रहा हूं उन दोनों में से. फॉर एग्जाम्पल एक ओपिनियन है कि कुछ लोग कहते हैं कि फास्ट फूड जो है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि फास्ट फूड एक्चुअली हेल्थ के लिए ठीक है. सो अगर थीसिस स्टेटमेंट लिखूंगा तो मैं बताऊंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है. लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि फास्ट फूड सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो मैं एक्चुअली बताऊंगा कि दिस एसे बिलीव्स दैट फास्ट फूड इज ब्ला 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 इंजूरियस टू हेल्थ वगैरह जो भी. लेकिन अगर मैं थीसिस स्टेटमेंट नहीं बनाना चाह रहा तो मैं कहूंगा दिस एसे डिस्कसेस बोथ ऑफ द गिवन आर्गुमेंट्स एंड इट आल्सो कंक्लूड्स ऑन एन ओपिनियन. तो मैंने सिर्फ ये बताया कि मैं बताऊंगा. ओके. ये है आउटलाइन सेंटेंस जिसमें मैं बता नहीं रहा बल्कि कह रहा हूं कि मैं बताऊंगा. ठीक है. थीसिस सेम इज स्टेटमेंट द हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि आइदर वी आर एग्जैक्टली गोइंग फॉर और अगेंस्ट. सो हाँ यस उसमें आउटलाइन में आप सिर्फ जेनेरिक होके लिख देते हो और एंड पे फिर बॉडी यस पैराग्राफ में आप बताते हो कि मैं मेरा ओपिनियन ये है इस बारे में. दैट्स राइट एग्जैक्टली यस ऐसा ही है. और यही चीज है आपका टॉपिक सेंटेंस. Now see, in topic sentence, sometimes you actually mention कि इस body paragraph में आप क्या बताना चाह रहे हो, और sometimes आप सिर्फ ये बता रहे हो कि इस body paragraph में आप बताओगे कि causes क्या हैं, इस body paragraph में आप बताओगे कि solutions क्या हैं. Let's say अगर किसी body paragraph में आपने advantages बताने हैं, तो आप सीधे सीधे उस एडवांटेज को मेंशन करके भी शुरू कर सकते हो. और दूसरा तरीका ये है कि आप शुरू करो कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. तो जब आप कहोगे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो एक्चुअली पता चल रहा है कि पहला सेंटेंस एक्चुअली किसी भी बॉडी पैराग्राफ का क्रक्स होता है. इसका मतलब है कि आप इस पैराग्राफ के अंदर एक या दो एडवांटेजेस बताने लगे हो, वो है टॉपिक सेंटेंस. सो इन दोनों में से कोई भी कम लेवल का नहीं है. कोई भी ये किसी भी एक आइडिया के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये सही है ये गलत है. इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि सूट योरसेल्व्स.
सो किसी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लिसिटली बताना ज्यादा इजी रहेगा और किसी क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा उसको जनरलाइज करके जानना थोड़ा इजी रहेगा। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, तो एक्चुअली दोनों सिचुएशंस में जो चीज सेम है टॉपिक सेंटेंस की, वो ये है कि टॉपिक सेंटेंस के अंदर उस एसे का उस बॉडी पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है। एग्जांपल्स में शायद और क्लियर हो जाए। सेकंड थिंग जो हमेशा लाजमी है किसी भी बॉडी पैराग्राफ के अंदर आफ्टर द टॉपिक सेंटेंस, उसको हम कहते हैं सपोर्ट। अभी जितना मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, इनको सपोर्ट भी कहते हैं। सो इट इंक्लूड्स योर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दोनों होना बेहतर है। अब इमेजिन करें कि अगर ये सपोर्ट है जो ग्रीन में यू कैन सी हाईलाइटेड, तो ये किस चीज को सपोर्ट कर रहा है? उस चीज को जो आपने टॉपिक सेंटेंस में बताया है, जो भी आपका ओपिनियन है। सो ये उसी टॉपिक सेंटेंस की बात को ही एक्सप्लेन कर रहा है। इसको कहते हैं क्या करना, एस्टेब्लिश करना अपने आंसर को। कि कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? लॉजिकली एक्सप्लेन करके, ऑफ कोर्स लॉजिकल कॉमन सेंस वाली बातें, एंड एग्जांपल्स विद एविडेंस। पर्सनल एग्जांपल और एकेडमिक एग्जांपल यानी फॉर्मल एग्जांपल, दोनों की एग्जांपल्स अभी आ रही हैं सैंपल में। तो दोनों तरह की एग्जांपल हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन। अगर वहां पे एक्सपीरियंस पूछा गया है तो योर पर्सनल एग्जांपल कैन बी ए पार्ट, अदरवाइज नहीं। अच्छा, और समटाइम्स वी नीड अ कंक्लूडिंग सेंटेंस, नॉट ऑल द टाइम। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर देता हूं। कंक्लूडिंग सेंटेंस के लिए यूं समझिए कि जिस तरह से हमने इंट्रोडक्शन में कहा कि बैकग्राउंड इज एक्चुअली ऑप्शनल, जो भी आपका सेंटेंस होता है बैकग्राउंड सेंटेंस, उसके बगैर आपका ऐसे हो सकता है, बेहतरीन ऐसे हो सकता है, 8 बैंड स्कोर का ऐसे हो सकता है। बट यहां पे वो सेंटेंस आखिर में है जो एक्चुअली ड्रॉप हो सकता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है? वो जिसको कहता है ना, henceforth, therefore, thence one can say that, therefore one can conclude that। ये इसेंशियल नहीं है। और अगर लिख भी लो तो कोशिश करो दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में ना हो, एक में हो, और खास तौर पे उसमें हो। लेट्स से इसको यूं करिए कि 2 बॉडी पैराग्राफ से एक बॉडी पैराग्राफ में आप उस आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आप उसको कर रहे हैं जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो। तो जिसको सपोर्ट कर रहे हो उसके एंड पे कंक्लूड कर दो, जिसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो कंक्लूड ना करो। या फिर पहले बॉडी पैराग्राफ में कंक्लूडिंग सेंटेंस ना डालें, सेकंड बॉडी पैराग्राफ के एंड पे डाल दें, ये ज्यादा लॉजिकल है। दोनों में इसलिए नहीं डालना चाहिए, फिर कंक्लूजन में हमारे पास बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है। तो अगर दोनों बॉडी पैराग्राफ्स में भी अगर इसको ना लिखो तो इट इज परफेक्टली ऑलराइट, आई एश्योर यू। कंक्लूजन का जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो बात होती है वो यहां पे पहले करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम आईएलटीएस जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं बॉडी पैराग्राफ, तो उसमें जरूर कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, जिसको हम नॉर्मली कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं कहते अगर वो आर्ग्यूमेंटेटिव ना हो, तो हम उसको ट्रांजिशन सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि वो अगले पैराग्राफ के साथ राब्ता बनाने के लिए सेंटेंस होता है। सो यहां पे उसकी खास जरूरत नहीं है। प्लस ये कि ये क्रिएटिव राइटिंग नहीं है। आईएलटीएस की राइटिंग के अंदर क्रिएटिव होने की कोई जरूरत नहीं। इवन अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा है कि अगर 2 ओपिनियंस हैं और उनको डिस्कस करने के बाद आपका ओपिनियन मांगा जा रहा है, तो भी तीसरा ओपिनियन ना लाएं। यानी क्रिएटिव होने की कोई जरूरत, जस्ट ट्राई टू पिक वन ऑफ दोस द ऑलरेडी गिवन वंस। सो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यहां पे। कंक्लूजन क्या है? ये है बस, नथिंग एल्स। इट इज अ रीकैप। अब इसको मैं यूं कहूं कि देखिए, मैंने कहा कि पैराफ्रेज द थीसिस स्टेटमेंट और द टॉपिक सेंटेंसेस। जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है, देखें थीसिस स्टेटमेंट या आउटलाइन सेंटेंस के अंदर मेन पॉइंट्स थे, वही मेन पॉइंट्स एक्चुअली बाद में जाके टॉपिक सेंटेंसेस बने थे आपके 2 बॉडी पैराग्राफ्स के। तो आप थीसिस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करो
या टॉपिक सेंटेंसेस को करो, दोनों सूरतों में बात एक ही है. सो इट इज इफ यू हैव टाइम, अगर आप, क्योंकि ऐसे लास्ट टास्क होता है और आखिरी पैराग्राफ हो रहा होता है आपका कंक्लूजन वाला, अगर आपके पास वक्त कम हो, यू शॉर्ट ऑफ टाइम, आपके पास 2 मिनट हैं, तो थीसिस स्टेटमेंट को दोबारा पैराफ्रेज करो. लेट्स से इफ यू हैव टाइम, सो ट्राई करेंगे दोनों बॉडी पैराग्राफ्स को सम अप करें, यानी दोनों बॉडी पैराग्राफ्स के टॉपिक सेंटेंसेस को. यू कैन ऑल्सो टेक 1 or 2 आइडियाज फ्रॉम द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. ट्राई अवॉइडिंग टेकिंग आइडियाज और पिकिंग आइडियाज फ्रॉम एग्जाम्पल्स, यानी एग्जाम्पल्स और एविडेंसेस को भी दोबारा कंक्लूजन में ना लाएं. ठीक है, ये ऐसे ही जैसे इफ यू रिमेंबर कि हमने रिपोर्ट में कहा था कि हम ओवरव्यू के अंदर डेटा मेंशन नहीं करते. सो इसी तरह यहां पे भी हम एग्जांपल्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे. एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर कोई बात आ सकती है या टॉपिक सेंटेंस के अंदर जाहिर है कि जो बात है उसको दोबारा पैराफ्रेज करेंगे. ये जनरल आइडिया है, और एवरी क्वेश्चन टाइप माइट हैव अ डिफरेंट शेड ऑफ इट. तो ये पॉसिबिलिटीज हैं. देखिए, अब ऐसे लिखने के हजारों तरीके हैं. सो टेम्पलेट्स मैंने पहले भी अपलोड की हैं. सो मैं उन टेम्पलेट्स के थ्रू भी जाऊंगा और 1-2 सैंपल्स के थ्रू भी जाऊंगा. मैं आज सिर्फ डबल आर्ग्यूमेंट तक रहना चाहता हूं, तो फिर आपको शायद इजी लगे. होपफुली ये काम आएगा. ये उस तरह का है ना कि जो अभी मैंने जो जनरल स्केच बनाया, सारे ऐसे एक्चुअली इसी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे. माइनर डिफरेंसेस, माइनर चेंजिंग्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आएंगी. राइट. सो अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है तो हम हल्का फुल्का देते, बिकॉज देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स. वो फिर वही बात है कि इट्स एक्चुअली एन आर्ट. स्पीकिंग इज एन आर्ट, राइटिंग इज एन आर्ट. लेकिन क्योंकि ये एकेडमिक है, सो स्किल भी है ये किसी हद तक. सो इट्स नॉट स्ट्रेट जस्ट आर्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यू डू नीड टू हैव एन आर्टिस्टिक अप्रोच. तो उस एंगल से भी देखा जाए इसको. अच्छा, अभी पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं टेम्पलेट पे जाना चाहूंगा, क्योंकि वो टेम्पलेट भी उसी के हिसाब से बना हुआ है, आंसर भी उसी पे बना हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन जी भी रिपोर्ट की तरह ही होती है, थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन होती है. इसमें यूं समझे कि सिर्फ कॉन्टेक्स्ट गिवन है और इंफॉर्मेशन कम है, क्योंकि वहां पे ग्राफ्स की फॉर्म में और वो वाला डेटा होता था. जो स्टेटमेंट है इंग्लिश की, वो ऑलमोस्ट मोर और लेस द सेम, यानी जो जिसको हम पैराफ्रेज करते थे वो मोर और लेस सेम है. जैसे अभी ये एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी कुछ स्टेटमेंट गिवन है, थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, लेकिन आप क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कभी कभार रिपोर्ट से कम भी होता है. सो इट्स नेवर द सेम. अच्छा, अब पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ें और समझें, तो फिर बात करते हैं. तब तक मैं एक बाइट लेता हूं. ओके, सो अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है, वो कहीं से स्टार्ट हो रहा है. सो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. अगर आप लोग मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर जो एक्चुअली ये सवाल है, फॉर एग्जांपल, अब ये क्योंकि डबल आर्ग्यूमेंट है, तो आप मुझे बताएंगे कि आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कहां से हो रहे हैं यहाँ पे, जो अभी मैंने हाईलाइट किया है भाई इसमें से. I think start से ही computers are being used more and more in उसको education. दूसरे एंगल से समझें. अब जैसे ये टाइटल है ना, डबल आर्ग्यूमेंट ऐसे, सो वेयर आर दोस टू आर्ग्यूमेंट्स? वो तो क्लियर है ना. Some people say that
हाँ हाँ, ये जो सम पीपल से है, यहां से आगे यू कैन से कि जैसे आप दोनों ने आइडेंटिफाई किया, फिर आगे है व्हाइल अदर्स आर्ग्यू। अब ये आर्ग्यूमेंट दोनों का है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी गिवन है। तो अच्छा, जो अभी पहला हम जो सेंटेंस है वो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड स्टेटमेंट है वो। बैकग्राउंड है, हाँ। ओके। एंड समटाइम्स क्या होता है कि ये बैकग्राउंड इसी आर्ग्यूमेंट के अंदर ही होती है, उसी सेंटेंस में। तो उस सिचुएशन में हमें जरूरत नहीं होती बैकग्राउंड के लिए जाने की, नॉट एसेंशियली। सो अब हम जो ये दो सेंटेंसेस हैं, इनको पैराफ्रेज करने से हमारी बैम स्ट्रेटेजी ऑलरेडी फॉलो हो जाती है, एंड हम इसको दोनों को ब्लेंड करके एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, चाहे तो अलग बना लें। सिंपल बात यह है कि इस सेंटेंस को, इन दो सेंटेंस को देखा जाए तो एक बैकग्राउंड है, दूसरा आर्गुमेंट है। सवाल तो समझ आया? तो अब यह है कि सम पीपल से that this is a positive trend while others argue that it is leading to negative consequences। जाहिर है कि इसी तरह के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था। नाउ आई वुड लाइक टू शो के टेम्पलेट क्या चीज होती है। This is just one template. You can change the sentences accordingly. Let's say this is introduction. एक सेंटेंस है, a highly controversial issue today relates to the use of computers in education। समझ रहे? सो अब वहां पे सिचुएशन के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं, highly controversial issue today relates to whether to use computers in educational institutions or not, yeah, for educational purposes or not। In this essay, I'm going to examine this question from both points of view and then explain why I believe that actually using computers and gadgets is essential for students grooming। तो ये आ गया मेरा thesis statement कि मैं बता रहा हूं कि मैं क्या। अच्छा, also this is just one example। आप इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स को पैराफ्रेज करके या अपने ओपिनियंस को डेवलप करके आप हजारों तरह से ये सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऐसा होता है। तो अब ये एक तरीका है। अच्छा, मैं सैंपल पे क्योंकि जाने वाला हूं, इसलिए पहले मैं वैसे दिखा रहा हूं कि यहाँ पे क्या पॉसिबल। अच्छा, जो मेरा अपना ख्याल है, और ये ख्याल में मुझे ऐसे ही आया नहीं, ख्वाब में आया नहीं, मतलब ये मैंने सीखा प्रॉपरली। सो पर्टिकुलरली दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन ब्रिटिश काउंसिल, ये जो चीज है ना, मैंने हाईलाइट किया, इट इज नेवर अप्रिशिएटेड। मुझे, आपने पहले क्लासेस ली हैं, यू नो कि आई जो है उसको मैंने हमेशा इंसिस्ट किया कि अवॉइड करें। ये सर, इसकी जगह हम ये कर सकते हैं इसको रिप्लेस करके कि दिस एसे इलस्ट्रेट्स और समथिंग लाइक दैट। यस, हाँ, यस। तो वो फॉर्मल। अब आई नो कि देयर इज एन ओपिनियन, देयर आर सम टीचर्स हु से कि इफ दे आस्क कि व्हाट इज योर ओपिनियन, तो आप बताएं कि इन माय ओपिनियन आई बिलीव। लेकिन प्रॉब्लम कुछ, एक मिनट होल्ड रखें। हाँ, Alright, so I was saying, अच्छा, क्या बात हो रही थी? हाँ, so there are people who believe कि भाई जब वो कह रहे हैं कि what is your opinion, तो आप कहें कि I believe in my opinion। देखें, सवाल में तो वो पूछेंगे ना कि what is your opinion, लेकिन अब जब आप फॉर्मल राइटिंग में आते हैं तो आप नहीं हो, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एसे। सो यूं समझिए कि आप अपना ओपिनियन दे के आ रहे हो, तो आप तो लिख के पेपर पे लिख के वापस जा रहे हो, तो आपका ओपिनियन वहां पे लेके रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? आपका एसे। सो योर एसे इज योर ओपिनियन, सो योर एसे इज एक्चुअली यू, योरसेल्फ। तो अब आप कहेंगे दिस एसे प्लस ये जो है ना, आई एम गोइंग टू, ये ग्रामर का स्ट्रक्चर भी इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस सिचुएशन। मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ पे आपको स्केच समझा रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं टेम्पलेट्स में या डिफरेंट सैंपल आंसर्स में। अब आप कहोगे ये कोई बहुत बड़ा फलसफी है, ये सैंपल्स के अंदर मिस्टेक्स निकाल रहा है। सो यस, हाँ, निकाल रहा हूं मिस्टेक्स, और यही है काम। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत ज्यादा नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल मिलता है। अब बस आप मुझ पे ट्रस्ट करें, आप
को बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी, जो मैं कह रहा हूँ उस पर बिलीव करें। और अभी मैं क्या अपने आप को डिफेंड करता फिरूं कि मैं जो कह रहा हूँ वो लॉजिकल है और सही है और एकेडमिक, जस्ट बिलीव इन मी। अब उसकी मैं छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यूं दूं कि many people who actually teach IELTS, they are just students of private colleges, Gordon College से कोई पढ़ के आ रहा है कोई इधर उधर से and couldn't find a job and then started teaching IELTS. So lots of people are here by accident. Lots of people are in this business because they find it attractive. So समझ के लोग कम काम कर रहे हैं। एंड अब आप कहेंगे भाई गूगल में भी तो ऐसे हैं, गूगल में भी जो मटेरियल जो थोड़ा सा फॉल्टी होता है, यूजुअली दिस मटेरियल कम्स फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर ये वियतनाम वगैरह से, क्योंकि ये इस तरह के लोग जाते हैं आइएलटीएस के लिए। सो जो मटेरियल आपको मिलेगा किसी नेटिव स्पीकर से वो कभी भी उतना फॉल्टी नहीं होता, लेकिन नाउ इट हैज बिकम क्वाइट इम्पॉसिबल टू फिल्टर कि कौन सा मटेरियल कहां से आ रहा है। सो स्टैंडर्ड जहन में हो तो बाकी चीजें खुद समझ आती हैं। ओके, मैं इसके ऊपर बाद में बात करूंगा। बॉडी पैराग्राफ के लिए भी हैं। देयर आर पीपल हु आर्ग्यू दैट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स for academic purposes considerably outweighs its disadvantages. The main reason for believing that is that करके logical explanation. It is also possible to say that करके logical explanation मजीद. One good illustration of this is करके example. One good illustration of this is the recent survey conducted by an international organization based in Lahore, which concluded that 78% of students who used computers got a higher result as compared to the ones who did not have an opportunity to blah 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 blah. Sir, I have a question. Yes, please. Can we use false information in an essay, or it has Definitely. to be a fact? Okay. By all means, you can. You should. And यहाँ पे your examples should just sound correct. They don't have to be correct. ठीक है? So कोई भी any example. Plus, don't try to use names of very famous organizations or very famous celebrities when you are coming up with a false information. उसको generalize करें. For example, in most European countries करके जब आप आगे example बताएंगे ना तो अब आप safe हैं. लेकिन अगर आप कहेंगे कि in UK तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अगर आप यूके को भी बैक एंड पे रख के आप कह रहे हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन लंदन, अब वहां पे हजारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नहीं पता। सो इट्स परफेक्टली ऑल राइट टू फेक एग्जांपल्स एंड यू विल हैव टू डू दैट। वो करना भी पड़ेगा। अच्छा, सो आप देख रहे हैं कि टॉपिक सेंटेंस है पहला, जिसमें मेन आइडिया है, फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, फिर एग्जाम्पल है। यही असल में स्केच होता है। सेम इज द केस इन द सेकंड बॉडी पैराग्राफ एंड देन कंक्लूजन में वही बात जो आखिर में सम अप करनी है। तो बताने का मकसद ये है कि आप अगर खुदा ना खास्ता इफ यू फील योरसेल्फ ब्लैंक और बिल्कुल कुछ भी मत्थे नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल कुछ भी आइडिया ही नहीं हो रहा, तो बस आप टेम्पलेट उठा लें, शुरू हो जाएं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टेम्पलेट्स के अंदर भी क्योंकि आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ परफॉर्म करना ही पड़ता है, सो इट इज बेटर टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। गलतियां हो जाए कोई मसला नहीं, उसको हम देख लेंगे, बरसारे आम देखेंगे। अच्छा, नाउ आंसर्स, कुछ सैंपल्स में एक और सैंपल पे भी जाऊंगा, बट बिफोर दैट मैं जिस क्वेश्चन को हमने पढ़ा उस पर जाना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बेहतर एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। ये भी मैंने पहले शेयर की हुई आपको बेहतर पता है। सो इकरारुल हसन को बुलाना पड़ेगा कि मुइज इज ऑन द रन। अच्छा, सो यहां पे अच्छा मुझे ये बताएं कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस एग्जांपल ऑलरेडी?
ओके, मैं एक ही स्टूडेंट को देख पा रहा हूँ, वो तो नो कह रहा है. व्हाट अबाउट द अदर्स? नो सर. ओके, 2, नो सर. 3. सर एक बार देखी थी बट अब याद नहीं इसमें क्या था. चलें, so almost actually it's a no, but this situation is a big no. अच्छा, देखें, चलें, छोड़ें, कोई बात नहीं. अब देखें, आपके पास एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है टॉप पे. चलिए, ये अच्छी एग्जांपल इसलिए है कि इसमें वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और दूसरा है कि इसमें आप ये भी देखेंगे कि आपको किस तरह से पैराग्राफ्स बनाने हैं. जैसे मैंने कहा था कि कोई इंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडेंटेड लाइंस नहीं है. जब भी नया बॉडी पैराग्राफ शुरू हो रहा है, बिल्कुल कॉर्नर से उसी सीध में उसी लाइन में आ रहा है. और प्लस ये कि आफ्टर एवरी बॉडी पैराग्राफ यू कैन सी कि वन लाइन इज स्किप्ड. चलें, ये तो एक काम हो गया. अब आते हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर ऑफ कोर्स 2 सेंटेंसेस हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज एक्चुअली अ पैराफ्रेज. जो गिवन स्टेटमेंट थे उसको पैराफ्रेज किया गया. अब यहाँ पे कहा गया, some people argue that zoos help to preserve wild creatures while others say that they are inhumane and should be abolished. अब ये वर्डिंग क्वेश्चन की नहीं है. I have lost the question, यहाँ किसी फाइल में था. I was searching for it while talking to you but I couldn't find. लेकिन I will share with you. आप देखेंगे, बल्कि मैंने दूसरी फाइल भी अपलोड की है जिसमें एक्चुअली ये MS वर्ड की फॉर्म में है, या आई थिंक PDF में था कहीं पे. उसमें इसका क्वेश्चन भी है, यू कैन सी दैट. तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो पहला जो सेंटेंस है इट इज जस्ट ए पैराफ्रेज, और अलग से कोई बैकग्राउंड सेंटेंस नहीं बनाया गया क्योंकि इट इज क्वाइट अ कॉमन टॉपिक, तो इसके लिए कोई खास बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है. सो 2 ओपिनियंस को पहले इस सेंटेंस में लाया गया. अब यहाँ पे एक ग्रामर का, पंक्चुएशन का पॉइंट है. तो अगर किसी के जहन में सवाल है तो पूछें, नहीं तो फिर खैर है. अगर आपको समझ आ गई तो कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड. लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन जो बनना चाहिए जहन में. ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली न्यू कि वाइल से पहले कॉमा आ सकता है? सर ये कंजंक्शन है. हाँ, लेकिन नहीं. ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. हाँ, सबऑर्डिनेट है ना वाइल? हाँ. यस सर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. तो क्या रीजन है? मतलब हमने तो ये कुछ और सीखा था. सर इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की वजह से. देखें, हमने ये कहा था कि अगर किसी भी सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आए तो फिर मिडिल में कॉमा आता है. यहाँ तो मिडिल में खुद सबऑर्डिनेट आ रहा है, फिर भी कॉमा है. What is the reason? अब आप रिकॉर्डिंग वापस जाके देखें. जब मैं जिस दिन इस पॉइंट पे बात कर रहा था तो मैंने एक मर्तबा कहा था कि देयर इज अनदर आइडिया कि समटाइम्स जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, in order to make comparisons of two almost equal, two ideas of almost equal magnitude, तो हम subordinate conjunctions यूज करते हुए भी कॉमा लगा सकते हैं. लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था, बट एग्जामिनर्स डोंट नो कि ऐसी कोई चीज होती है. आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, बट मुझे याद है, एंड यू कैन गो बैक एंड चेक. तो ये वो है. तो यहाँ पे कॉमा के बगैर भी बात बन सकती है, लेकिन जिस तरह से वो है ना कि ऑक्सफोर्ड कॉमा, इसी तरह ये वाला है कि जहां पे 2 ऑलमोस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड की चीजों को जब कंपेयर किया जाए या कंट्रास्ट किया जाए तो वहां पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ भी कॉमा लग सकता है. चलें, ये तो बात होगी. अब देखें जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये है थीसिस स्टेटमेंट. ऐसा होता है थीसिस स्टेटमेंट. अब ये क्या है? While the development of breeding programs contributes to the preservation of endangered species, I believe that the poor conditions that many animals held in captivity are kept in make the existence of zoos unacceptable. पहले सेंटेंस में 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं. वन आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि zoos जो हैं उनका बहुत फायदा है क्योंकि वो एक्चुअली जो वाइल्ड क्रीचर्स हैं उनकी जिंदगियां बचाने में, उनको एंडेंजर्ड से सेफ जोन में लाने की काम आती हैं. उनकी जिंदगियां बचती हैं जूस की वजह से, क्योंकि जाहिर है कि जंगल में तो उनकी हंटिंग हो सकती है. While others say that they are inhumane, यानी क्या inhumane है? जूस जो हैं वहां पे बिल्कुल
गैर इंसानी रवैया होता है एंड शुड बी अबॉलिश, इसलिए जूस जो है वो नहीं होने चाहिए। दो आइडियाज हैं, अब इनमें से किसी एक के ऊपर हमने सपोर्ट करना है कि एक के ऊपर आर्ग्यू करना है। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लासेस में हमने एक बात की थी, टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। जिसको याद है मुझे एक्सप्लेन करने और बताया हमने कौन सा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया था। टू प्ले डेविल्स एडवोकेट की मीनिंग समझाएं चले। although यूज किया था सर, आई थिंक। गुड, यस यस यस, वेल डन। तो हमने कहा था कि ऑल्दो के बाद, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसमें जो पहला साइड आएगा ऑल्दो के फौरन बाद, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के फौरन बाद जो पार्ट आएगा, उस पार्ट में हमारा ओपिनियन नहीं होगा, कॉमा के बाद हमारा ओपिनियन होगा। याद है ना? तो उसमें हमने कहा था कि अगरचे बोल के हम उस ओपिनियन की बात करेंगे जिसके ऊपर हम बिलीव नहीं करते। यहां पे भी ऑल्दो की जगह while, बिल्कुल सेम आइडिया है। while the development of breeding programs contributes to the preservation of endangered species, यानी जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं या जो ज़ाहिर है कि जूस के थ्रू होते हैं, उनसे बिल्कुल इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का काम होता है। लेकिन यहां पे लेकिन की मीनिंग कहां पे आ रही है? कॉमा में आ रही है। वाइल और कॉमा आते हैं तो उसका मतलब होता है अगरचे और मगर। ये लफ्जी तर्जुमा नहीं होता, ये आइडिया है। अब कॉमा के बाद हमारा ओपिनियन आएगा। I believe that the poor conditions that many animals held in captivity are kept in make blah blah, कि अब वो बता रहा है कि जो दूसरा ओपिनियन है वो उसके ऊपर बिलीव करता था। अब पहले सेंटेंस में जाएं और देखें जो वहां पे जो दूसरा ओपिनियन था, while others say that they are inhumane and should be abolished, कि जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि जो जूज हैं वो गैर इंसानी है, वो खत्म होने चाहिए। तो अब जो ओपिनियन आ रहा है थीसिस स्टेटमेंट में, वहां पे है, आई बिलीव दैट द पोर कंडीशंस दैट मेनी एनिमल्स हेल्ड इन कैप्टिविटी आर केप्ट इन मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ जूस अनएक्सेप्टेबल। तो अब वो ओपिनियन भी बता रहे और वो मेन पॉइंट भी बता रहे कि क्यों। ये है थीसिस स्टेटमेंट, जो काफी डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स किस्म चीज होती है। सर इसको इधर भी समझो और पूछो। सेम चीज रिपीट हुई है आय वाली, सो क्या यहाँ पे हाँ, इट इज बिल्कुल। बिलीव्ड भी लिखा जा सकता था? नहीं 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 नहीं, इट इज बिलीव नहीं, यहाँ पे इट इज यहाँ पे बिलीव स्टांस जो है। लेना अपना। हाँ नहीं नहीं, आई की जगह पे कोई और एक्सप्रेशन रखे, हम कहेंगे दिस एसे बिलीव्स, ओके। यानी इट इज बिलीव्ड और दिस एसे बिलीव्स में काफी फर्क है। यानी दिस इट इज बिलीव्ड का मतलब कि ऐसा माना जाता है, यानी जनरली हमारा माना आर्गुमेंट जाता है। फिर इतना स्ट्रांग नहीं होगा उससे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि एक्चुअली तो ये बात तो हम पहले सेंटेंस में बता सकते हैं, जो दो आर्गुमेंट, कि इट इज बिलीव्ड दैट जूस हेल्प टू प्रिजर्व वाइल्ड क्रीचर्स, कि एक यानी कहा जाता है कि ऐसा किया जाए, और ये भी कहा जाता है एंड इट इज आल्सो सेड कि दे आर इनह्यूमन। वो उस वक्त हम बताएंगे जब हम दूसरों के ओपिनियंस बता रहे हो जनरलाइज करके। और ऐसा भी कर सकते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट में हम अपना स्टांस देते और नीचे फिर ना दें और ऐसे ही से कंटिन्यू करें, या एक पॉइंट पे स्टिक रहें। फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि थीसिस स्टेटमेंट में अपना ओपिनियन दें और बॉडी और मतलब कंक्लूजन में ओपिनियन ना दें। आप आई यूज कर रहे हैं ना क्लियरली थीसिस स्टेटमेंट में, बट नीचे आप आई नहीं यूज कर रहे, आई या वी नहीं यूज कर रहे नीचे कहीं पे। हाँ हाँ, इट्स फाइन। आई मीन देखें, एक्चुअली कॉन्सेप्ट है कि फ्यूअर यूज ऑफ फ्यूअर पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि कम से कम। अब एक मर्तबा स्टूडेंट्स को कहते हो ना कि यू कैन यूज आई, तो फिर वो पूरे के पूरे में आई वी और यू आ जाते हैं। सो एक्चुअली यू कैन, बट ट्राई अवॉइडिंग इट एज मच एज पॉसिबल। तो जब आप आई की जगह दिस ऐसे कहते हो तो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, और अगर आप आई कहते हो तो इट्स फाइन, लेकिन कोशिश करेंगे फिर दूसरी मर्तबा फिर ना आए। नाइस। अच्छा, इसकी एक और मिसाल है, जैसे कभी कभार स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में भी आई कह रहे हैं, कंक्लूजन में भी जाके कह रहे हैं कि इन कंक्लूजन वी कैन से दैट, ये कहते हैं इन कंक्लूजन यू कैन से दैट, तो ये फिर गलत हो जाएगा। वहां पे फिर क्या, इन कंक्लूजन वन कैन से दैट, उस तरह से जाएं ताकि वो थोड़ा सा फॉर्मल रहे।
तो आप आई को, और अगर ब्रिटिश काउंसिल के साथ जा रहे हो ना तो ये वाला आई भी ड्रॉप ही कर दो। एईओ के साथ जा रहे हो तो ठीक है, आई बिलीव कह दो, या आई एग्री आई डिसएग्री कह सकते हो। अगर ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस के साथ टेस्ट हो या आईडीपी के साथ टेस्ट हो। ब्रिटिश काउंसिल वाले एग्जामिनर्स बहुत ज्यादा टिपिकल किस्म के हैं यार, मतलब समझें कि इस बात को कि बस ये कहानी है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, सो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर देखें कि हम अपना ओपिनियन क्लियरली बता रहे हैं कि भाई हमारा पर्पस क्या है। अब जिस किसी ने भी इस एसे को नहीं पढ़ा और सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ा है, उसको समरी पता है। यानी अब थीसिस स्टेटमेंट जिस तरह हमने कहा कि वो मेन पॉइंट्स भी, हमने बैम स्ट्रेटेजी में BAM कहा ना, M यानी मेन पॉइंट्स, तो थीसिस स्टेटमेंट में मेन पॉइंट्स हैं। अब मेन पॉइंट्स क्या है? यानी हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इसके फायदे भी हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादा गैर इंसानी रवैया है लिहाजा अनएक्सेप्टेबल है। फायदे होने के बावजूद अनएक्सेप्टेबल है, ये ओपिनियन है एक्चुअली। अब थीसिस स्टेटमेंट को गौर से समझें, यानी ये नहीं कि कोई फायदे ही नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा। यानी कहा जा रहा है कि फायदे हैं लेकिन बहुत गैर इंसानी सलूक है। अब इस बात से मुकरना नहीं है किसी भी लेवल पे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि कोई फायदा ही नहीं है। जाहिर है कि ये कैसे कहा जा सकता है, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात हो जाएगी। अच्छा, सो ये थीसिस स्टेटमेंट तक बात थी। अब बॉडी पैराग्राफ्स पे आने से पहले ये देखें कि दोनों बॉडी पैराग्राफ्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ लैंग्वेज यूज हुई है। दोनों बॉडी पर, हाँ, On the other हाँ, hand, on the yes. other hand. तो एक बॉडी पैराग्राफ को स्टार्ट करते हुए ऑन द वन हैंड और दूसरे में ऑन द अदर हैंड, तो अब ये दो कनेक्ट हो गए। इसको जैसे हमने पहले कहा कोहेरेंस एंड कोहेजन। अब ये तभी कहा जा सकता है ना जब वो आपस में कनेक्टेड हो, और ऑफ कोर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं दो अलग अलग किस्म के ओपिनियंस, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये बात। अगर कोई ऑन द वन हैंड कहे बगैर ऑन द अदर हैंड कहे तो वो थोड़ा सा सेमी फॉर्मल हो जाता है। सो इट इज बेटर टू यूज बोथ ऑफ देम, उससे इजी भी रहता है और काम भी क्लियर। अच्छा, अब पहले बॉडी पैराग्राफ के अंदर, on the one hand there are many projects in existence in zoological parks around the world where species facing extinction have been successfully bred in captivity and their numbers increased substantially। कि एक तरफ तो ये बहुत सारे फायदे हैं कि ये अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, ठीक है, ये है यू आर प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, यानी आप अपने ओपोनेंट के दिमाग से सोच रहे हैं इस वक्त। This is important for ensuring the survival of animals under threat from poaching and destruction, blah blah blah. A good example of this is the golden lion tamarin from Brazil, blah 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 blah. Examples आ गई। तो टॉपिक सेंटेंस में वो ओपिनियन आ गया कि ओपिनियन आइडिया क्या था, मेन पॉइंट क्या था, फिर उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी गई कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर बाद में एग्जांपल देके बताया गया कि फलां जगह पे ये काम हो रहा है। तो ये एक आइडिया हो गया, लेकिन हमने क्योंकि ऑन द वन हैंड कहा है, अभी हमने ओपिनियन तो नहीं दिया, तो अब हम देंगे। ये बिल्कुल ऐसे समझें जैसे ऑल्दो और कॉमा, ऑल्दो दिस, कॉमा के बाद दिस। तो अब हम आ रहे हैं अपने ओपिनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, a significant percentage of zoos house their animals in cramped cages with very little space to move around or behave naturally। कि अब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये फायदे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है। This can lead to them becoming distressed and depressed as well as suffering physically through lack of exercise। तो अब वहां पे कह रहे हैं कि ये तो उनको इस मसले से गुजार सकती है जो बहुत सीरियस मसला है। अब पर्सनल एग्जांपल आ रही है, ऊपर वाली जो है ना वो एकेडमिक किस्म की एग्जांपल थी। A friend of mine recently visited a wildlife park while on holiday abroad and was very upset, blah 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 blah। अब ये आ गया एग्जांपल। तो दोनों को हमने क्लियर किया। अब यहां पे होना चाहिए था एक कंक्लूडिंग सेंटेंस जो मिसिंग है। तो वो क्या होना चाहिए था? कंक्लूडिंग सेंटेंस में बताना चाहिए था कि हम इस वजह से ये बिलीव करते हैं। सो वो मिसिंग है। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। इसने किया है, इसने कंक्लूजन में जाके वो, तो अब इसने कंक्लूजन में कहा although
Zoos do help to safeguard dwindling populations of particular species. The suffering experienced by many captive creatures due to unsuitable living conditions amounts to cruelty and they should not be allowed to exist. Opinion यहाँ पे आके तो इसने क्या किया, बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लिसिटली ओपिनियन नहीं दिया. वी शुड हैव डन दैट. ये कैसे करना है, पूरे बॉडी पे जगह जगह पे ओपिनियन ना घुसाएं. इट्स ऑल राइट, आप बॉडी पैराग्राफ पहले वाले को नेचुरल रखें, दूसरे के आखिरी सेंटेंस को जरूर ऐड करें, कंक्लूडिंग सेंटेंस जिसमें आप बताएंगे कि आपका ओपिनियन क्या है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप पहले बॉडी पैराग्राफ के अंदर सपोर्ट कर रहे हो और दूसरे में उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो दूसरे बॉडी पैराग्राफ के एंड पे कंक्लूड करें. मिसाल के तौर पे 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि जो पहला बॉडी पैराग्राफ है वो सेकंड बॉडी पैराग्राफ है. 1 मिनट के लिए अस्यूम कर लें, ठीक है. तो अब हम कहेंगे टुडे a third of wild golden lion tamarins were raised in captivity. Full stop. However, this importance does not outweigh the drawbacks or the harmful effects that the existence of zoos has on animals. That is why it becomes impossible for a humane individual to believe in the existence of zoos, blah blah blah, whatever. तो अब वहां पे हम ओपिनियन देंगे, यानी दूसरे बॉडी पैराग्राफ की आखिरी सेंटेंस में. तो अगर वो सपोर्टिंग वाला पैराग्राफ है तो भी ठीक है, सपोर्ट में सेंटेंस बनाओ. अगेंस्ट में जाने वाला पैराग्राफ है तो उसके अगेंस्ट में. दोनों सूरतों में दोनों बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर आपकी राय आ जाती है. इसको यूं समझिए, अगर आपको याद हो रिपोर्ट राइटिंग में 2 बॉडी पैराग्राफ्स होते थे और पहले में हम दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते थे, दूसरे में पहले वाले के साथ कंपेयर करते थे, क्योंकि वो फिगर्स पहले से गिवन नहीं होते थे पहले बॉडी पैराग्राफ में. तो कोशिश करें कि जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो दूसरे बॉडी पैराग्राफ के एंड पे आए, जो आई होप कि इस एग्जांपल में होगा जो मैं अभी शो करने जा रहा हूं. आई होप सो, शायद ना हो, लेट्स सी, व्हाटएवर. अच्छा, अब ये क्वेश्चन था, देखिए कि computers are being used more and more in education. There is an ever increasing use of technology such as tablets and laptops in the classroom. Paraphrasing हो रही है. So अब आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट आइडिया आना इज नॉट एसेंशियल, क्योंकि आप ऐसे लिख रहे हो, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे. अच्छा देखें, some people say it is often argued. अब ये स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए. आप कह सकते हो some people say, some people believe, some people argue. आप कह सकते हो many people say, many people believe, many people argue. आप कह सकते हो it is often argued, it is said, it is believed. आप कह सकते हो it is often argued by many, it is often argued by some people. तो अगर it is argued या it is said या it is believed कहोगे तो वो पैसिव वॉइस है, तो अच्छी बात है, वैरायटी रहेगी. और दैट तो वैसे भी इसमें आएगा बिकॉज जाहिर है कि इसमें जरूरत पड़ती है, तो इससे वो कॉम्प्लेक्स भी बनना है. इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. व्हाट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट? दिस इज. whilst others disagree and think it will lead to adverse ramifications. Ramifications कहते हैं नताइज, results. Adverse यानी संगीन नताइज हो सकते हैं इसके. This essay agrees, ये फॉर्मल लहजा है, that an increase in technology is beneficial to students and teachers. तो अब इस सेंटेंस इस पैराग्राफ के अंदर हुआ ये कि जो गिवन आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको पैराफ्रेज किया और अपना ओपिनियन दिया. Now let's go to the first body paragraph. Topic sentence. It is clear that the internet has provided students with access to more information than ever before. Okay. ये बात ठीक है. अभी इसी को moreover, learners have the ability to research and learn about any subject. The touch of button is therefore agreed that technology is a very worthwhile tool for education. इसलिए बात मानी जाती है कि टेक्नोलॉजी बहुत फायदे की. जैसे एग्जांपल है विकिपीडिया की. ओके फाइन. तो क्या चीज है? टॉपिक सेंटेंस है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है और एग्जांपल है. हो गया. आगे
इसने क्या कहा था, दिस इज अग्रीज दैट एन इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल टू स्टूडेंट्स, इसीलिए इसने कहा कि इट इज वेरी वर्थवाइल टूल। अच्छा, हाउएवर मैनी डिसएग्री एंड फील दैट टेक्नोलॉजी, अब देखें यहां पे क्या कह रहा है, इट इज क्लियर दैट, यानी ये कह रहा है कि ये बात तो वाजे है, इसका मतलब है कि इसको बिलीफ है इस बात के ऊपर। यहां पे ये नहीं कह रहा कि इट इज क्लियर, यहां पे कह रहा है कि मैनी डिसएग्री, कि कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, ये डिसएग्री नहीं कर रहा, ये भी केयरफुल इसमें है। एंड फील दैट टेक्नोलॉजी डिप्राइव्स पीपल ऑफ रियल ह्यूमन इंटरेक्शन, दिस इज नॉट द ओपिनियन ऑफ द राइटर, ये उसके अगेंस्ट जा रहा है वगैरह, कि ऐसा लोग समझते हैं। तो ह्यूमन इंटरेक्शन टीचेस पीपल वैल्यूएबल स्किल्स सच एज डिस्कोर्स, डिबेट एंड एम्पैथी। जाहिर है कि ये तो एक जनरल बात है, ठीक है, डिस्पाइट दिस, लेकिन इसके बावजूद ये क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट में आर्ग्यू कर रहा है एक्चुअली। उसके बावजूद ह्यूमन इंटरेक्शन इज स्टिल पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट, एंड दिस essay disagrees टेक्नोलॉजी शुड बी डिसमिस्ड फॉर दिस रीजन। तो अब ये उसके अगेंस्ट में आर्ग्यू कर रहा है, इसने बॉडी पैराग्राफ के अंदर ओपिनियन रख लिया, और यही मैं कह रहा था पिछले सैंपल में कि इन सम सैंपल्स उन्होंने नहीं रखा, इट्स ऑल राइट, सिचुएशन के हिसाब से। अब एग्जांपल दे रहा है, फॉर इंस्टेंस स्काइप एंड फेसबुक मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू इंटरेक्ट इन वेज दैट वर नेवर बिफोर पॉसिबल। तो अब इसके अंदर ओपिनियन ऑलरेडी आ चुका है, और जो कंक्लूडिंग सेंटेंस वाला जो आइडिया था वो इसने अंदर ही रख लिया हुआ है कि भाई हम तो नहीं एग्री करते। सो एग्जाम्पल भी देखें कि किस तरह की आ रही है। सो इट इज अ बेटर सैंपल इन मेनी सेंसेस। हर सैंपल में से कुछ अच्छी चीजें सीखने की होती हैं। पिछले सैंपल में ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल अच्छी थी, उसका इंट्रो अच्छा था, उसका इंट्रो जो है वो बहुत अच्छा था इस सेंस में कि उसका थीसिस स्टेटमेंट वेल एस्टेब्लिश था। इस सैंपल का थीसिस स्टेटमेंट थोड़ा सा पोलियो हुआ इसको, वीक है, इसके अंदर वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, लॉजिक पूरा नहीं उसके अंदर ऐड किया गया। सो जाहिर है कि कोई भी परफेक्शन कहीं पे भी नहीं। तो ये बता रहा हूं कि इसके बॉडी पैराग्राफ्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कमाल के, ब्रिलियंट। ये सैंपल्स ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं। अब कंक्लूजन में जैसे मैंने पहले कहा कि जो मेन आइडियाज हैं उन्हीं को पैराफ्रेज करना। अब इसमें थोड़ा सा लेंथी बनाया है, लेकिन बात ऑलमोस्ट वही है जो ऊपर की हुई है। तो इन कंक्लूजन, आप अपने लास्ट पैराग्राफ को शुरू करते हो, आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो इन कंक्लूजन, आप कह सकते हो ऑल इन ऑल, आप कह सकते हो टू इनकैप्सुलेट, आप कह सकते हो टू रिकैपुलेट, मतलब कोई भी आप कह सकते हो टू पुट इट इन अ नटशेल। लेकिन अगर इन सारे एक्सप्रेशंस में से आप मुझसे पूछोगे कि ज्यादा एकेडमिक कौन सा साउंड करता है, तो आप या कहेंगे इन कंक्लूजन या आप कहेंगे इन समरी, दैट इज मोर लॉजिकल। प्लस तो ज्यादा फॉर्मल भी। अगर ज्यादा वैरायटी रखनी है तो ज्यादा बोले ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल इज अ सेमी फॉर्मल एक्सप्रेशन, सो चलेगा। ये जो टू पुट इन अ नटशेल है, ये भी काफी कैजुअल सा है। सो अगर किसी सैंपल में पढ़ भी लें तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं। While the benefits of technology, particularly the internet, allows students to tap into limitless sources of information, some still feel that people should be wary of this new phenomenon, not allowed to cover it. देखें, इसने ओपिनियन बदला ही नहीं। यार कि बहुत सारे फायदे होने के बावजूद कुछ लोग फिर भी ये मानते हैं कि इससे मसला होगा, लेकिन ये फिर दोबारा एक्चुअली इंसिस्ट कर रहा है, however, as long as we are careful to keep in mind the importance of human interaction in education, the educational benefits are clearly positive. So बहुत अच्छा इसने ऐसे लिखा, इसमें बस इंट्रोडक्शन के अलावा सब बेहतर है। सो बस आइडिया वही है कि यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, थोड़ी सटल डिफरेंसेस आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल यही फॉर्मेट है कि इंट्रोडक्शन में देयर इज अ पैराफ्रेजिंग ऑफ द गिवन आर्गुमेंट्स एंड द स्टेटमेंट्स, एंड देन देयर इज अ थीसिस स्टेटमेंट. In body paragraphs you have a topic sentence, logical explanation, example, and in conclusion you actually sum up the whole essay. You say the things whatever you have already said in your body paragraphs again. In other words, आप topic sentences को paraphrase कर रहे होते हो, you might want to take one or two ideas from your logical explanation sentences as well, जो आपके body paragraphs में होते हैं. Otherwise, काफी होगा अगर आप सिर्फ टॉपिक सेंटेंस को भी कर लेंगे. However, जैसे मैंने पहले कहा, इफ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, आप बिल्कुल 2 मिनट रहते हैं, 3-4 मिनट रहते हैं और आपको कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखना है, तो सब कुछ भूल भाल के थीसिस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करो.
क्योंकि आधा अधूरा कंक्लूजन लिखने से बेहतर है कि बात पूरी हो चाहे मुख्तसर हो। सो अब यहाँ से आगे बस अभी आप आपके सेंस के हवाले फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप, रीड सैम्पल्स एंड ट्राई राइटिंग आंसर्स। एंड नाउ जितने भी मैंने आपको बुक्स भेजी हैं कैम्ब्रिज की 15, 14, 13, 12 वगैरह, उनमें जितने भी डबल आर्ग्यूमेंट एसेज हैं उनको ढूंढें, उनको अटेम्प्ट करें and send me and we shall discuss them in the class. Tomorrow we shall see what Tehsina's answers have in them. उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं एंड देखें क्लास में डिस्कस वंस अगेन। फायदा वही है कि एक तो ये कि जो आप लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है शायद वो खत्म हो, क्योंकि आप शायद एक दूसरे से इतने रिजर्व्ड हैं कि आप मुझसे भी बात नहीं करते। सो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इसी तरह से करना पड़ेगा। वो इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी फेमस कपलेट बाय जॉन एलिया दैट सेज कि, अच्छा क्या था वो पहला मिसरा मेरे ज़हन से निकल गया ना। हाँ एक मिनट, लेट मी थिंक ऑफ इट, इट्स जस्ट ऑन द टिप ऑफ माय टंग। ओके अभी ज़हन में नहीं आ रहा ना। क्या बहरहाल द मफहूम ऑफ द आइडिया ये था, द क्रक्स ये था कि अब जबरदस्ती ही करके कोई मुझे सुधार सकता है, वगर न यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। सो ऐसा है कि शायद अब यही आखिरी पॉसिबल सिचुएशन है कि मैं स्क्रीन पे ले आऊं आंसर्स, तो शायद आप उस चक्कर में एक दूसरे से बात करना शुरू करें एंड ट्राई टू फाइंड अ स्पीकिंग पार्टनर। For example, Sehrish and Tehsina, you can be brilliant speaking partners for each other. Ali and Moiz, you can be speaking partners. So if you really want to practice speaking apart from the classes, वैसे भी आप क्लास में बात करते नहीं हो आप कोई भी, तो you can actually talk to each other. Many people install applications on their cell phones these days कि I am trying to find a speaking partner. भाई अगर speaking partner ढूंढना है तो the best place is your class. क्योंकि मुमकिन है कि सोशल मीडिया पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लोग वो पर्पस लेके नहीं आते, लेकिन क्लास में एवरीवन इज हियर टू लर्न, सो मे बी दैट कैन आल्सो हेल्प। बट इफ समवन इज नॉट कंफर्टेबल विद यू, बी इट फ्रॉम द सेम जेंडर, समटाइम्स पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, इट्स ऑलराइट, डोंट इंसिस्ट, लेकिन जितना आपसे हो सके तो कोशिश करें। ये असाइनमेंट्स कर लें, एसेज जो भी हैं कैम्ब्रिज 15 से 14, 13, 12 जो भी अपलोड किए, उनमें जहाँ जहाँ डबल आर्ग्यूमेंट है उसको करें। टुमारो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अग्री डिसएग्री ऐसे, और यही दो क्वेश्चन टाइप्स ज़्यादा कॉमन हैं, एक वो जो आज हमने डिस्कस किया और एक वो जो हम कल करेंगे। बाकी वाले थोड़े से निस्बतन कम फ्रीक्वेंट हैं, तो उनको इसलिए बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट। Any questions? All right. Thank you for your patience. Thank you, sir. Allah Hafiz. Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.